Uh, Hello, Sumit. Welcome to uh, this our Toppers Talk, right? Hello, And ma'am. first off, congratulations on the achievement what you have got 200 rank, right? And we are here now with the list. मतलब हम 2 साल से देख रहे हैं बात कर रहे हैं कि कब होगा लास्ट इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक आ गए हम राइट सो वी आर Yes, ma'am. सो before matlab, we get into the preparation strategy and everything Mhm. what was your background with the graduation कैसी पढ़ाई रही है आपकी and what you did with the profession also right so ठीक just है. let us know a Yes, ma'am. little bit yeah Sure. Ma'am, I have done schooling from Sainik School Golpara, Assam, one of the okay like Sainik schools in Assam. और उसके mm-hmm. बाद फिर I took a break after my 12th and then appeared for CLAT, that is Common Law Admission Test. And then okay I got All India rank 4 and then mm-hmm. joined National University of Juridical Sciences, Kolkata, NUJS. oh My whole course was like 2017 to 2022, and mm-hmm. 2022 was my first attempt, which I appeared अच्छा along with my job profile. Like I was working at one of the premium law firm called Cyril Amarchand Mangaldas. और उसके बाद फिर जाके when I appeared and then the marks came out, I found out कि 14 marks से नहीं हुए and means एक जो था ना वो biggest hurdle था because interview generally अच्छे जा रहे थे मेरे. तो फिर मुझे okay समझ में आया कि ठीक है आई नीड टू टेक अ ब्रेक, टेक ए पॉज फ्रॉम माई लाइफ जो वर्किंग लाइफ थी, एंड देन मे बी गिव इट वन शॉट एटलीस्ट मतलब फॉर द यूपीएससी. correct correct फिर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन होल 2023 होल 2024 आई वाज इमर्स्ड इन द प्रिपरेशन एंड थैंकफुली एंड बाय गॉड्स ग्रेस इस बार हो गया this है. one so in the first attempt only you appeared for mains right यस मैम, आई अपीयर्ड फॉर मेंस एंड आई जस्ट क्वालिफाइड मेंस बाय मार्जिन. और okay फिर हाँ इंटरव्यू अच्छे थे एंड देन आई मिस बाय 14 मार्क्स. उस साल oh कट ऑफ वाज 960 एंड माय मार्क्स वर 946. And this was our third attempt, right? यस मैम. एंड सेकंड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ था, आई मिस बाय 1.5 मार्क्स. दिस इज द Same. नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन आई गेस. Yes, it is. It is. It is. Or what actually was the driving force or anything which inspired you to take go for this exam? Was it like कि हमेशा से था या फिर कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं यार I should prepare something came around for that? मैम आई वुड से कि हमेशा से था. वो अच्छा. होता है ना व्हेन यू आर इन द सैनिक स्कूल तो यू वुड वांट टू ज्वाइन इन अ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. और फिर आई अपीयर्ड फॉर नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन जो एकेडमी वाला जो Correct. एग्जामिनेशन होता है. आई कुडंट क्वालिफाई दिस, आई वाज मेडिकली आउट. और फिर Oh. जाके लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है आगे जा करके एंड देन आई अपीयर्ड फॉर क्लैट. वाइल अपियरिंग फॉर क्लैट ऑल्सो इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि हाँ एक बार ना एक बार तो अच्छे से सिविल्स देना है. एंड Correct. उस चक्कर में आई डिड नॉट टेक द फॉरेन लॉ फर्म जॉब्स और अदरवाइज जो भी था अपॉर्चुनिटीज आई मिस दैट just to sit for this examination. Okay. And finally, it has shown results. It has materialized now. So, So we were very clear from the beginning only that we want to yes, do ma'am. I was this. very clear from the beginning that I am going to sit for this examination. You have already knew that you want to go for this exam. So how did Yes, you ma'am. like start with it? क्योंकि सबसे Yes, ma'am. जो biggest question होता है when anybody want to go with this exam, like what to do Mhm. now, and Yes, ma'am. already lot of things are there to under मतलब somebody is saying something else, somebody would be telling you to go for Mhm. coaching or anything else. So what you decided like how to go with that? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुली मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है फ्रॉम सैनिक स्कूल इटसेल्फ who has qualified this examination back in 2020. Mukund Thakur ranked 54 at that year. And then he suggested me, he showed me the path कि okay, this book you need to refer. So बहुत ही standard reference books था जो मुझे refer किया गया था. And I was told strictly that you just need to read that. And maybe multiple number of times. तो ये मुझे clarity था शुरुआत से कि okay, I'm going to refer only these many books एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो मेरे हमेशा से दिमाग में था कि ये बुक्स हैं और फिर मल्टीपल डिवीजन है एंड अलोंग विद दैट आई ऑलवेज कीप माय पीवाईक्यूज एज वेल एज एक स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सो एज टू चेक माय ओवरऑल परफॉर्मेंस. एंड But you इफ यू never वांट देन आई joined कैन. any coaching. यस मैम, आई But नेवर you ज्वाइन. never joined. अच्छा. यस मैम, आई नेवर ज्वाइन बट या आई रेड इट लाइक जो भी ओके मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं. मतलब ये वाला जो गाइडेंस है वो आपको पहले ही मिल गया था कि दिस इज यस मैम, हाँ. एंड इफ यू वांट देन आई कैन एनुमरेट द बुक्स व्हिच yes yes आई we will do रेफर. that in the
that section of that. We will do that. All right. Okay. हाँ. Okay, so start with the preparation. The first attempt only you got with the prelims also, right? Then you Yes, ma'am. appear tournaments. तो फिर Yes, ma'am. वहाँ पे क्या strategy रही आपकी? क्योंकि prelims तो हो गया, but mains obviously we see that it became a hurdle, right? Yes, So ma'am. तो how मतलब वो कैसा था और फिर जब आपने अभी दिया Yes, तब ma'am. कैसा डिफरेंस क्या हो गया ये पूरे, क्योंकि ब्रेक भी है एक पूरे साल का, Mm-hmm. उस Mm-hmm. बीच में क्या डिफरेंस हो गया दोनों में? मैम, आई बिलीव ना कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें आई डिड नॉट डू जस्टिस विथ माय ऑप्शनल पेपर. दैट ओके. वाज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर आई बिलीव. क्योंकि ऑप्शन मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट था. ऑब्वियसली यू आर न्यू टू दिस होल करेक्ट. जर्नी एंड देन यू आर नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल बिकम्स द गेम चेंजर इन दिस, मतलब अभी जैसा ट्रेंड चलते आ रहा है. तो ना मैंने ऐसे पे अच्छे से ज्यादा ध्यान दिया था, ना मेरा ऑप्शनल इतने अच्छे से हुआ था. जीएस आई वाज श्योर कि जीएस तो चलो हो जाएगा बिकॉज आई हो हैड जाए. थोड़ा स्ट्रांग होल्ड ड्यूरिंग माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन ओनली. तो वो वाला चीज मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करा इस बार. इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वर्कड ऑन माई ऑप्शनल, मतलब ए एज ए, मतलब वो होता है ना कि हाँ अच्छे से करना है. ऑप्शनल पे एक एक चीज अच्छे से डिटेलिंग में नोट्स बनाया मैंने. फिर पीवाईक्यूज देखा. विल डिस्कस दिट वंस वी गेट टू दैट ऑप्शनल सेक्शन. उसके बाद फिर जाकर आई वर्कड ऑन माई एसे. थैंक्स टू यू एज वेल बिकॉज यू गेव मी वो पीयूष सर वाला गाइडेंस एंड देन ही चेक्ड माई पेपर कॉन्स्टेंटली. ऑल्दो मेरे मार्क्स इतने इंप्रूव नहीं हुए, बट अगर मैं रिलेटिव देखूं बिकॉज 2022 में थोड़ा पेपर इजी चेकिंग हुआ था एज कम्पेयर टू 2024. So even if somebody is getting say 100 plus in 2024, that is equivalent to say 110 or at least 120 in as compared to 2022. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई बिलीव कि रिलेटिव मार्किंग भी इंक्रीज हुई है. तो वो होता है कि आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट से यू लर्न द लेसन्स एंड देन यू अप्लाई बिफोर हैंड सो दैट कि कुछ गड़बड़ी ना हो. गड़बड़ी ना हो जाए. ठीक है. तो ऑप्शनल क्या था हमारा, हमने वो ऑप्शन डिस्कस लॉ था मैम. लॉ. तो ही था, मतलब यस, तो हाँ. वी हैड अ स्ट्रांग होल्ड ऑन इट आल्सो, यस राइट? मैम, स्ट्रॉन्ग होल्ड था बट वंस यू गेट आउट फ्रॉम द कॉलेज यू हैड दैट, वो होता है ना कि कॉलेज में यू राइट से 10 पेजेस का आंसर. यहाँ पे आपको 2 पेजेस का आंसर्स लिखना है, तो दैट बिकम चैलेंज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. चैलेंज एंड चैलेंज ऑब्वियसली यू आर फ्रेशली मतलब आउट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन कॉलेज. तो वो वाला सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे यू हैड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड नैक ऑफ राइटिंग इन डिटेल. So that I करेक्ट. avoided in this attempt, and my answers were very pinpointed. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इट इज कैटरिंग टू नाउ वी दैट विल डिमांड. डिस्कस विद दैट स्ट्रैटेजी ओनली, बट पहले कि यस मैम. कुछ ऐसा था आपका, मतलब एक मिसकंसेप्शन, आई फील इट इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट आवर्स, हाउ मच आवर्स यू स्टडी, एंड यस मैम. व्हाट इज योर थॉट ऑन इट, लाइक कि कुछ ऐसा होता है कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे तो होगा, या फिर हमारा अपना पर्सनल हमको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि हम कैसे पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर हमारे आवर्स होने चाहिए. Yes, ma'am. या Ma'am, I believe the whole journey, the whole preparation is very customized, very personalized to one's demand. And this I करेक्ट. realized in my first attempt only. Like वो जो बोलते हैं कि सुबह में 6 बजे उठ जाओ या सुबह में 4 बजे उठ जाओ एंड देन यू नीड टू स्टडी फॉर गुड 18 आवर्स. बिल्कुल भी रूटीन नहीं था, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था. पहला, मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि आई कैन सिट फॉर लाइक 15 आवर्स फॉर लाइक 1 मंथ और समथिंग. मेरा नहीं है कैपेसिटी. आई एम हैप्पी इवन इफ आई एंड अप रीडिंग फॉर गुड लाइक 8 to 10 आवर्स. और मेरा टारगेट वही रहता था कि मिनिमम मुझे 8 आवर्स पढ़ना है. एंड दिस आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट. नो मैटर व्हाट, होली है, दिवाली है, कुछ भी है, अगर मुझे 8 आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना है. इवन इफ अगर फेस्टिवल होता था देन आई यूज टू कवर इट अप, मतलब बाद हाँ, में 10 आवर्स here and पढ़ के there. 12 आवर्स पढ़ के. बट अगर मैं अपना 2 साल का एक्चुअली में जर्नी इफ आई हैव टू लुक बैक, देन 8 आवर्स आई वुड से हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट. एंड दैट वाज इट. मतलब नो ऐसा कुछ खुद को प्रेशराइज करना कि नहीं नींद आ रहा है फिर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. मैं नींद भी काफी एडिक्वेट लेता था. से 12 बजे 1 बजे सो रहा हूँ तो आई यूज टू वेक अप एट अराउंड लाइक 8 o'clock 9 o'clock इन द मॉर्निंग. आई यूज टू सिट एट माई टेबल एट अराउंड 10 o'clock आफ्टर लाइक ब्रेकफास्ट एंड ऑल. फिर मैं अपना अच्छे से पढ़ाई करता था. तो इन दैट सेंस ना आई थिंक इट्स वेरी, आई बिलीव मिसकंसेप्शन ही है काइंड ऑफ कि यू नीड टू डू study for good like 18 hours. Even if you are doing a smart study for 8 to 10 hours, then also for good 1 year, I would say minimum 1 year, 8 to 10 hours. If you are doing it consistently, then I think one would be able to qualify this examination Correct. easily. करेक्ट. सो नाउ लाइक हार्स वाला चीज हो गया है, फिर अब बहुत ज्यादा सिलेबस वास्ट है, राइट?
तो हम Yes, ma'am. एक अप्रोच तो होनी चाहिए, हमको पता होता है कि हाउ वी आर अप्रोचिंग, एज यू सेड Mm-hmm. अर्लियर आल्सो दैट यू हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड कि ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये करना है, बट Yes, फिर ma'am. भी कोई एक अप्रोच रही है पूरा कंसिस्टेंट की ये ही अप्रोच के साथ आप चल रहे थे, या फिर उसमें कोई चेंजेस आए थे अप्रोच में? जैसे हम आपने बताया कि अभी सेकंड जब आपने किया तो थोड़ा सा लिखना ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो हाँ हाँ. ओवरऑल अप्रोच अगर हम बोले प्री टू मेंस तक में गए, Yes, ma'am. सिलेबस मैम, कवर करने का यस मैम, स्पेसिफिकली। दो चीजें हैं वहां पे. एक तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, द टर्म्स ऑफ द सिलेबस विच हैज बीन रिटन बाय द यूपीएससी. वन नीड्स टू आइडेंटिफाई दैट. और मेरे ना नोट्स बने हुए थे हर एक टॉपिक्स के ऊपर, स्पेशली GS4 के ऊपर. तो एक हो जाता है अंडरस्टैंडिंग की जो नुआंस होते हैं ना, इवन इफ यू आर गोइंग टू रेफर और डायरेक्टली रीडिंग फ्रॉम दोज रेफरेंस बुक्स, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द नुआंस ऑफ मतलब यूपीएससी क्वेश्चंस. तो दैट करेक्ट। फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू रेफर टू द सिलेबस प्रॉपरली. एक बार वंस यू हैव रेफर्ड योरसेल्फ टू द सिलेबस कंप्लीटली, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पीवाईक्यूज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थीम्स. जैसे यूपीएससी फॉर एग्जांपल इंडियन मॉनसून के ऊपर घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता ही पूछता है, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस. तो अब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द मेन थीम्स जहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड इफ यू आर डूइंग ब्लंडर्स इन दोज थीम्स, तो फिर मुश्किल तो होना तय है. मतलब यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दोज लो हैंगिंग फ्रूट. तो वही हो जाता है कि एक बार अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड देन आइडेंटिफाई द थीम्स ऑफ द सिलेबस थ्रू पीवाईक्यूज. एंड दिस करेक्ट। PYQ has been a guiding light for me, like a Bible for me. No matter what, I have always referred to PYQs towards understanding the mindset of the UPSC examiner, and also कि हाँ किस तरह से मैं डेवलप करूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है कि नोट्स बनाना, और मेरे जैसे ऑप्शनल में भी थे, यानी तो जीएस के भी जो नोट्स बने हुए थे थोड़े बहुत, मैंने बहुत कम नोट्स बनाए. बट जो भी बने हुए थे इट वाज बेस्ड ऑन द थीम which were being asked in the PYQs. तो वो अंडरस्टैंडिंग काफी हेल्पफुल थी टू डी कोड दिस एग्जामिनेशन. तो मतलब it was always clear, मतलब I want to say in the mid only this thing, यस मैम. from the 2 years when I'm knowing you, the best thing about you was this only, that it was always clear what you want to do. It was never like यस कि मैम. हम confused हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं है, तो हम अपने थॉट से बहुत क्लियर थे. ठीक है, तो अब यस मैम. हम रिसोर्सेज पे आ जाते हैं, राइट? वी गो विद द यस मैम. रिसोर्सेज एंड यस फ्रॉम मैम. प्रीलिम्स टू मेंस ऑप्शनल, ये यस उस मैम. पे चलते हैं. तो प्लीज लाइक enlighten us with your what worked for you लिमिटेड can रिसोर्सेस. work for, yes, it can work for यस मैम. many also. Yes, यस मैम. yeah, please go ahead. यस मैम. मैम, फर्स्ट पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, एवरीबडी इज अवेयर लक्ष्मीकांत. एंड एक एक अंडरलाइनिंग थीम रहेगा इसका कि पीवाईक्यूज आई हैव ऑलवेज यूज्ड. तो दिस आई एम Correct. नॉट गोइंग टू रिपीट. दिस इज द लाइक पीवाईक्यूज एंड सिलेबस विल बी, मतलब वो साथ में ही चलते रहेगा. तो पहला था पॉलिटी के ऊपर मेरी, सिंस आई हैव डन लॉ, तो थोड़ा मेरा पकड़ भी था उस पे. और साथ साथ मैंने लक्ष्मीकांत भी रेफर करा था, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. मेंस के लिए थोड़ा बहुत, बट प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा. फिर चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर. पर्सपेक्टिव जब डेवलप कर रहा था, मतलब ऑब्वियसली आप ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो यू नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कि क्या Correct. एग्जैक्टली हो रहा था. देन आई रेफर्ड दैट बिपिन चंद्रास का बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर पर्सपेक्टिव बिल्डिंग. कि हाँ ओके, सो दीज वेर द इवेंट्स विच टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस. उसके बाद आई रेफर डायरेक्टली टू द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं करना है. फर्स्ट 200 पेजेस जो है स्पेक्ट्रम के, दैट हैज बिकम थोड़ा सा इरेलीवेंट, एटलीस्ट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. एंड फिर 600 पेजेस के बाद जो है दैट हैज आल्सो बिकम इरेलीवेंट. तो जो 200 से लेकर के 600 तक का पेजेस जो हैं, वो आपको अच्छे से देखना है. उसमें थीम आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पे मतलब अगेन वहां पे रटना भी है, वहां पे समझना भी है, वहां पे जो फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स हैं वो भी याद करने हैं. तो इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब लॉजिक प्लस मेमोराइजिंग थिंग्स. एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही होगा. जहां पे रटने का है यू विल हैव टू मतलब मेमोराइज थिंग्स. Correct. तो वो Correct. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए था. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक है. ऑफ लेट आई हैव मेड स्मॉलर नोट्स फ्रॉम देम. तो मैंने लास्ट में मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक्स रेफर नहीं करा था, रादर आई स्टार्टेड रेफरिंग नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स थे मेरे. फिर जाके एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की बुक आती है,
वो मैंने रेफर करा था। अगेन उससे भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे कुछ कुछ, तो वो मैंने रेफर करे थे। तो मैं मेरा जो भी था ना कि जैसे मेजर सब्जेक्ट्स है जहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे मुझे पता है कि रटना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरली आई एम नॉट वेरी गुड एट मेमोराइजिंग थिंग। तो जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ रटना ही पड़ेगा, देन आई मेड वेरी कंसाइज नोट्स विच बिकम्स वेरी हैंडी फॉर माई प्रिपरेशन स्पेशली ड्यूरिंग प्रीलिम्स, क्योंकि उस समय तो आपको फैक्चुअली चीजें मोस्टली याद करनी होती है। तो एंड मिडेवल हिस्ट्री के लिए एक मैंने ना, विद्यांशु सर हैं जो आई थिंक इस बार आईएएस बने हैं, लास्ट टाइम ही वाज इन द रिजर्व्ड लिस्ट में आए थे, तो उनके मिडेवल हिस्ट्री के नोट्स थे। देन आई रेफर्ड माई सेल्फ टू दैट फॉर प्रीलिम्स। तो ये हो गया पूरा हिस्ट्री का सेक्शन। नाउ वी मूव टू ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड बुक क्लास 11 एंड क्लास 12 के एनसीईआरटी, जहां पे भी मुझे गैप्स मिले थे इस साल, देन आई रेफर टू जीसी लियोंग। जीसी लियोंग के भी सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे, ये नहीं कि पूरा ही रेफर करना है, जहां पे मुझे प्रॉब्लम होती थी। जैसे आई स्टिल बिकम वेरी ड्रेडफुल ऑफ इंडियन मॉनसून, पता ही नहीं चलते रहता है कि ये विंड कहाँ से आ रही है नहीं आ रही है, तो वहां पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई रेफर्ड माई सेल्फ दैट। और स्टार्टिंग में आई रेफर्ड, राजतनिल मैम है एक आईआरएस, उनकी वीडियोस मैंने रेफर करा था। आई थिंक इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वो मैंने देखा था फॉर अगेन मतलब पर्सपेक्टिव डेवलपिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए आई रेफर्ड, इकोनॉमिक्स के लिए मैम मैंने 3-4 बुक्स रेफर करा था। फाइनली आई सेटल डाउन टू मोनाल सर का मॉड्यूल। तभी जब मैंने स्टार्टिंग फेज में मैंने करा था तो वो काफी कंसाइज था, बट आई बिलीव अभी थोड़ा बल्कि हो गया, बट स्टिल नॉन द लेस आई स्टिल बिलीव इट्स वेरी रेलिवेंट इवन इन दिस एग्जामिनेशन। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वो रेफर करा था। इन्वायरमेंट के लिए इनिशियली आई रेफर्ड शंकर आईएएस का बुक, and thereafter in some of the portion I have heard कि PMFIS is equally good, तो वो मैंने रेफर करा था। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए डॉक्टर सेविन की लेक्चर्स हैं, वो मैंने इस साल देखा था। और उनके नोट्स भी अवेलेबल है कुछ कुछ, क्योंकि साइंस एंड टेक ऐसा है कि लो हैंगिंग फ्रूट है, जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुए और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय टारगेट वाज कि एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आई शुड बी एबल टू टैकल। तो ये था मेरा मैम वेरी बेसिक सोर्स। उसके बाद रेफर करते हैं जब करंट अफेयर्स मैगजीन होता है या फिर ईयरली कंपाइलेशन होता है। मैंने जो कोचिंग के रेफर करा था दैट वाज इक्वली गुड, बट हैविंग सेड दैट आई वुड से कि आप कोई भी कोचिंग का उठाओ, बट बी वेरी कंसिस्टेंट इन दैट। अगर मंथली फॉलो कर रहे हो तो मंथली फॉलो करो, ईयरली फॉलो कर रहे हो तो ईयरली करो, बस एक करो वही काफी है। अब वो वाला होता है ना कि मार्केट में कि ये कोचिंग का उठा लूं, वो कोचिंग का उठा लूं, अच्छा ये सर ने दिया है तो ये भी पढ़ लूं, तो दैट वे दैट अप्रोच आई आई बिलीव इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब इट मे वर्क फॉर सम पीपल, टाइम एंगेजिंग, हाँ टाइम। टाइम एंगेजिंग है। एंड सेकेंडली मैम आई बिलीव फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, आई बिलीव कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर स्टैटिक का होता है तो that should be sufficient in order to qualify this prelims, because I have seen my own friend who is an IS right now, उसको उसने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था, जस्ट बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के लिए बस एक ईयरली कंपाइलेशन उसने बस एक बार पढ़ा, एंड स्टिल ही एंडेड अप गेटिंग मोर देन 100 मार्क्स इन हिज प्रीलिम्स। तो स्टैटिक पोर्शन हैज बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। No, it is actually, and it's very good, like understanding also, and it will help out many people. मतलब जो भी आपको अगर सुनेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं, but it is executing is more important because lot of things are there in the market and यस people मैम, think कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, but अगर आप यस मैम, stick around हो अपने sources को लेके, तो definitely यस you will be able to get fruit out of यस it. Okay. मैम। मैम वन मोर थिंग, Yeah. जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, या फिर इवन इफ लाइक व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट, तो मेरा एक अप्रोच रहता था विच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आई बिलीव। फर्स्ट था कि जैसे मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, से लक्ष्मीकांत या फिर इकोनॉमिक्स, तो मैंने पहले पीवाईक्यू देख अच्छे से एनालिसिस करता था कि ठीक है पीवाईक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Correct. फिर देन आई यूज टू रेफर माई सेल्फ टू ऑल द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, कि हाँ ये बुक मैंने पढ़ा है, और उसी समय ना मुझे समझ में आता था कि ओके दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद Correct. वंस आई एम डन रीडिंग दैट बुक, उसके बाद फिर से मैं पीवाईक्यू रेफर करता था बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। फिर से मैं देखता था कि ओके दी टू इवेलुएट माई ओन परफॉर्मेंस कि कितने यूपीएससी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उस वे में एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग बहुत डेवलप हो जाता था, एंड ऑल्सो कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स होता था
सो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ या थर्ड रिवीजन कर रहा होता, तो मुझे वो पता रहता था कि कौन से पोर्शन छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। इन यूपीएससी आई आई थिंक दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है वो सबको पता रहता है, कौन सा छोड़ना है ये किसी को नहीं पता रहता है। तो कौन सा छोड़ना है वो तभी समझ में आएगा जब कोई सिलेबस एंड पीवाईक्यूज देखा जाएगा। तो वो क्लैरिटी होने से ना, मतलब आई बिलीव कि वो बहुत हेल्प किया था। मतलब इवन विथ माय लिमिटेड सोर्सेज, इवन विथ माय लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स which I have put in for UPSC, it has helped me. GS1 से लेके शुरू कर देते हैं, that would work. Yes, ma'am. What? मैम GS1 के लिए Hmm. सो एक रेफरेंस बुक्स अगेन हैविंग एट द कॉस्ट ऑफ रीआइटरेशन, एक रेफरेंस मैंने हमेशा फॉलो करा। मुझे सत्यम गांधी सर के नोट्स बहुत अच्छे लगे थे, एटलीस्ट फॉर GS1 एंड GS3। GS1 के लिए एक मैंने उनका बेस बनाया, सिलेबस डिकोड किया, एक एक वर्ड्स, जैसे विमेन है, सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके मैंने खुद के नोट्स बनाए, मैंने एक एक पेज के, दो दो पेज के, और वो वैल्यू एडिशन में करता चला गया सत्यम गांधी सर के नोट्स में। तो उनका नोट्स का मैंने प्रिंट आउट कराया और उसी में ऐड करते गया। जैसे श्रुति शर्मा मैम का भी मैंने नोट्स कुछ कुछ पिकअप किए थे, बट उसमें भी मैंने एडिशन करते गया, बिकॉज ये तो रेडीमेड अवेलेबल है। तो मुझे अलग से मेहनत नहीं करना था, मुझे लग रहा था कि जब अवेलेबल है, व्हेन टॉपर्स हैव यूटिलाइज्ड दैट, देन व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट फॉर माय Right. ओन बेटरमेंट। Very तो good. उस सेंस में ना GS1 का मैंने थीम आइडेंटिफाई करा, जैसे विमेन है तो आई यूज टू हैव वन फैक्ट शीट फॉर द सेम। और फैक्ट शीट में अगेन उसमें फैक्चुअल डाटा रहते थे, कमिटी के रिपोर्ट्स रहते थे, कोई केस लॉज हैं वो हैं, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो हैं, कोई पास्ट में एक कोई अच्छा सक्सेस स्टोरीज है, तो वो मैंने आइडेंटिफाई करके वो मैं पुट इन करते रहता था उसमें। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर एक चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए आई बिलीव उन्नयन बांका प्रोग्राम है, या बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड बाला वो प्रोग्राम है, या फिर एक माल न्यूट्रिशन के लिए ये सुपोषित राम या कुपोषित रावण। तो दीज आर मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं आपके पेपर्स में। तो Right. GS1 के लिए मैंने एक्चुअली में वही करा था। एंड इफ यू गो थ्रू माय मार्क्स इन बोथ द GS, मतलब जो 2022 में मैंने मेंस दिया था और 2024 में मैंने, दोनों में मुझे आई एंडेड अप गेटिंग मोर देन 100 इन GS1। तो वो सेंस में ना इट हैज हेल्प मी। Help. हाँ। GS1 में mostly toppers notes we have done with यस मैम। our addition to it. Okay. यस And with मैम। GS2? GS2 के लिए मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फॉर माय लॉ प्रिपरेशन, लॉ ऑप्शन, क्योंकि मुझे केस लॉज काफी क्लैरिटी था, मुझे आर्टिकल्स सेक्शन जहाँ पे यूज करना होता था वो क्लैरिटी था। तो अब GS2 का मैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन में ही अगेन मतलब एक स्टैंडर्ड बुक था सत्यम गांधी सर के नोट्स, उसमें वैल्यू एडिशन करते गया मैं। वहां पे ही जो भी केस लॉज हैं, रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो मेरे नोट्स में थे। फॉर एग्जांपल इस बार भी एक आध दो जो क्वेश्चंस आए थे जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट वाले, वो मेरे नोट्स में थे ऑलरेडी, विच आई हैव लिस्टेड देयर। तो इट हैज हेल्प मी, मतलब पॉइंट बीइंग कि आपका नोट्स थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एक बेस मटेरियल रेफर करो, उसके बाद नोट्स उसमें वैल्यू एडिशन करते रहो। नाउ GS2 का आंसर राइटिंग टेक्निक, GS2 का ना मैंने बहुत स्पेसिफिक आंसर राइटिंग टेक्निक था। यू स्टार्ट विथ केस लॉज और आर्टिकल्स और कमिटीज और लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, वो स्टार्टिंग होता था। थीम में भी जैसे श्रुति शर्मा मैम का मैंने कॉपी काफी अच्छे से मैंने रेफर करा था, और उन्हीं का मैं मतलब पैटर्न फॉलो करता था। यू गिव वन पॉइंट बॉडी में, यू गिव वन पॉइंट, यू सब्सटेंशिएट इट विथ एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स मैं रेफर कर रहा था। तो उसी तरह से थीम्स, सब थीम्स आइडेंटिफाई किए, और एंड थैंकफुली GS2 भी मेरे अच्छे थे, जहां से मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मतलब बोथ द टाइम्स आई गॉट लाइक मोर देन 115 प्लस इन बोथ द अटेम्प्ट। Correct. तो उस सेंस में आई बिलीव GS2 का हेल्प हुआ था। ठीक है. And now GS3. GS3 थोड़ा सा आई वुड से आई वाज नॉट वेरी गुड एट GS3, एंड आई थिंक मार्किंग पैटर्न भी UPSC का हैज बीन ऑन द लोअर साइड ओनली। And first attempt I ended up getting 78 or 79. This time also I ended up getting only 85. So GS3 का भी सेम पैटर्न था मैम। थीम आइडेंटिफाई कीजिए आप सिलेबस से उठा करके, और उस पर नोट्स बनाइए। और GS3 में मैंने इस बार एक मैंने वैल्यू एडिशन करा था कि मैंने बहुत ज्यादा डाटा एंड फैक्ट शीट ऐड करा था। अगेन सत्यम गांधी सर के ही नोट्स मैंने रेफर करा था, और उसमें थीम्स, डाटा, जो भी कंपाइलेशन होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सब, वो मैंने काफी विगोरसली मैंने ऐड करा था कि सो दैट मैक्सिमम रिटेंशन हो,
और वो एग्जाम में मैक्सिमम आ पाए। हाँ तो भाई। ये चीज के लिए GS3 मैंने यूज करा था। मूविंग टुवर्ड्स GS4। हाँ। GS4 मैम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता है। ऑल्दो मैंने इतना जस्टिस नहीं करा था, इतना टाइम नहीं दिया था, बट स्टिल दोनों अटेम्प्ट में थैंकफुली मार्क्स अच्छे आए GS4 में। फर्स्ट मैम, अगेन मेरा ये हमेशा रहता था कि वेन एवर और वॉट एवर आई स्टार्ट, फर्स्ट आई शुड हैव अ पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, यूपीएससी में क्या चल रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज बीइंग टॉट। तो उस सेंस में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो आई रेफर्ड माई सेल्फ टू मुदित जैन सर का जो बुक है, वो मैंने डिकोड एथिक्स करके बुक है आई बिलीव, वो मैंने रेफर करा था। वो काफी अंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे। उसके बाद मैंने क्या करा था, एक रेड डाटा बुक है फॉरम आईएएस का भी, वो भी मैंने रेफर करा। तो दीज टू बुक्स आई रेफर्ड एज अ बेस मटेरियल, जहाँ पे मुझे हेल्प होता है ना कि यू डेवलप योर पर्सपेक्टिव, यू अंडरस्टैंड कि हाँ ओके दीज आर समटाइम्स यू आर वेरी एथिकल पर्सन बट दैट यूजुअली डू नॉट कम आउट इन योर आंसर्स। फॉर दैट आई बिलीव कि एक हाँ एक पर्सपेक्टिव डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। उसके बाद फिर मैंने GS4 के एक एक वर्ड्स पिकअप किए, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया। मेरा ऐसा रहता था, मेरे वर्ड नोट्स हैं जहाँ पे एक एक के थीम वाइज डेफिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स होते थे। जैसे इंटीग्रिटी के ऊपर आई हैड गुड लाइक 10-15 एग्जांपल्स, एटीट्यूड के ऊपर आई हैड गुड 10-15 एग्जांपल्स, एंड दोज एग्जांपल्स आई बिलीव वेर वेरी यूनिक इन नेचर। मतलब विच इज थोड़ा सा जो हटके, कन्वेंशनल बुक्स में तो मिलेगा ही, डिकोड एथिक्स में भी है, सभी रेफर कर रहे हैं, फॉरमैस का रेड डाटा बुक सभी रेफर कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू डू समथिंग एल्स। समथिंग एल्स वो आएगा कहाँ से, वो आएगा आपके न्यूज़पेपर से आएगा। मैंने योजना और कुरुक्षेत्र यूज करा था, जैसे नॉर्मल है। आई स्टिल रिमेम्बर, एक बिहार का कोई किसान थे, वो MBA वगैरह सब करके आए एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग इन इन हिज फार्म। लोग पहले मजाक उड़ाए, उसके बाद फिर ही वॉज वेरी रेजिलियंट इन हिज अप्रोच एंड नाउ ही इज अर्निंग crores ऑफ रुपीज। तो दैट shows कि how your attitude can change the approach which people usually take. It also reflects resilience. Now, these are unique examples which you do not find in conventional book. अगर मैं ये एग्जांपल GS4 के मतलब आंसर्स में दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरा आंसर डिफरेंट होगा। वो था। फिर GS4 में मैंने इंडिपेंडेंटली आई साइटेड केस लॉस, आई साइटेड लॉ कमीशन रिपोर्ट, आई साइटेड आर्टिकल्स, बिकॉज वंस योर आंसर इज थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, तो इट इम्प्रेसेस द एग्जामिनर। मतलब दिस इज माय इंडिविजुअल बिलीफ कि थोड़ा आपका कॉन्स्टिट्यूशन And साउंड्स। it हाँ it हाँ works for you also with your हाँ। background thing. यस मैम। It works तो उससे because you know रिलेटेड connect that. Yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जैसे वुमेन्स के राइट के ऊपर हो गया, चाइल्ड के राइट हो गया, यू रेफर योरसेल्फ। जैसे आर्टिकल 24 है, उसमें बोल रहा है कि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। अब चाइल्ड लेबर पे केस स्टडीज आते हैं, चाइल्ड लेबर पे आपका कुछ और आता है, तो वहां पे वंस यू रेफर कि आर्टिकल 24 है, तो थोड़ा आंसर अलग दिखेगा दूसरों से। तो उस सेंस में आई बिलीव GS4 का काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन था। और उसी तरह से मेरे हैंड रिटन नोट्स भी थे, और उसी तरह से मेरे एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल्स का जो कंपाइलेशन था, इट हैज हेल्प मी, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी, पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए भी। तो मुझे ना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके सोचना नहीं पड़ रहा था वाइल राइटिंग माई आंसर्स कि अच्छा इसके लिए मैं क्या एग्जाम्पल दूं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड एग्जाम्पल्स थे। एंड वन मोर Correct. थिंग, जैसे एसडीजीज अगेन पीपल जनरली यूज इट ओनली फॉर GS1 2 3, एंड GS4 के लिए मेरा काफी इंडिपेंडेंट अप्रोच रहता था कि वॉट एवर आई हैव गेन, वेदर इट इज थ्रू GS1 2 and 3, आई एम गोइंग टू यूज इट। SDG भी मैंने यूज करा, आर्टिकल्स भी मैंने यूज करा, कमिटी भी मैंने यूज करा, लॉ कमीशन रिपोर्ट भी यूज करा, और फिर जाके ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी यूज करा मैंने। मतलब जो पास्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है वो भी यूज करा। तो एक GS4 का अप्रोच होता है कि यू गिव योर पॉइंट्स एंड देन सब्सटेंशिएट विद योर एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स इट शुड बी डायरेक्टली हिटिंग टू द पॉइंट। जैसे रेजिलियंस का Correct. है या एटीट्यूड का है, व्हेन आई एम यूजिंग दैट, देन वो एग्जांपल जो मैंने बिहार के एक किसान का मैंने यूज किया, तो दैट इज हिटिंग टू द पॉइंट, वो भी होना चाहिए। तो GS4 में Correct. अगर वो डायरेक्टली हिट कर रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फेच यू मोर नाउ। And one more thing, ma'am, regarding case studies. Case studies, I believe, has been an X factor अभी जो इस साल जो पूछा गया, क्योंकि 2022 में भी काफी लेंदी पेपर था, 2024 में भी काफी लेंदी पेपर था। हैविंग सेड दैट, आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट होना चाहिए केस स्टडी के साथ, दैट शुड बी डायनेमिक। वो भी नहीं है कि मेरा कोई रिजिड स्ट्रक्चर भी नहीं था। जैसे GS4 के लिए मैंने केस स्टडी के लिए मेरा था एक टेम्पलेट, बट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जैसे इस बार का क्वेश्चन काफी डायनेमिक इन नेचर था, मैंने वो चेंज करा।
तो यू शुड हैव दैट नैक ऑफ चेंजिंग, मतलब वो होता है ना Flexibility कि should एक, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी build up. वाला चीज होना चाहिए कि आप रिजिड नहीं होने चाहिए GS4 में। द मोमेंट यू गो रिजिड, तो फिर GS4 विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स, फिर वो 100 के Correct. नीचे 80s में मार्क्स आने लगते हैं। Right, right, right. Okay. And last essays left with this whole यस mains तक मैम। होने के लिए. हाँ हाँ मैम, ए से काफी पेनफुल जर्नी रहा है मेरा ऐसे से पर्सनली, क्योंकि आई बिलीव फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा ऐसे ही था जो ओवरऑल मुझे लिस्ट में नाम नहीं आया, एंड दिस अटेम्प्ट में भी थोड़ा सा तो पुलिंग फैक्टर रहा है। हैविंग सेड दैट, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी एक स्टैंडर्ड कोचिंग ज्वाइन करा था। वहीं पे दे आर गिविंग मी फीडबैक, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बट एक स्टैंडर्ड कोचिंग था जहाँ पे काफी मतलब ऐसा टाइप का था कि ओके, गुड इंट्रोडक्शन, गुड बॉडी, वो कस्टमाइज्ड मुझे वो नहीं मिल रहा नहीं. था, जो फीडबैक जो होती है जहाँ पे आई कैन एक्चुअली वर्क अपॉन, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। इस सेंस में मैंने इस बार दो चेंजेस करा। एक मैंने जो आपने हेमल मैम ने रेफर करा था पीयूष सर को, मैंने वो एक किया था, और उसमें मैंने काफी दिनों से मतलब आई रोड गुड लाइक 10-12 एसेज इन दैट प्रोग्राम। तो जहाँ पे पीयूष सर यूज टू गाइड मी, थोड़ा पर्सनलाइज फीडबैक मिलता था, जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने का थोड़ा लगता था कि हाँ यहाँ पे। और साथ साथ मैंने एक और कोचिंग का ज्वाइन करा था सिविल्स डेली का, इससे उनका भी प्रोग्राम मुझे ठीक लगा था। और साथ में मतलब पीयूष सर का जो गाइडेंस था ना, जैसे वो डायरेक्टली हिट हो रहा था। जैसे इंट्रोडक्शन में अगर कुछ ऐसा है, इंट्रोडक्शन के बाद यू राइट दैट कनेक्टिव पैराग्राफ, विच जनरली मेरा थोड़ा ना वो दूर हो जाता था ऐसे के मेन टॉपिक से। तो ही यूज्ड टू से मी कि ठीक है, ये तुम्हें लिंक करना है। जैसे कंक्लूजन भी ना, मैं थोड़ा लिखते लिखते वो हो जाता है ना कि स्पेशली व्हेन यू आर अ लॉयर और यू टेंड टू राइट मोर, वो वाला सीन मेरे साथ हो जाता है। और व्हेन यू टेंड टू राइट मोर, तो चांसेस होता है कि यू जस्ट लीव दैट टॉपिक एंड मूव वे, मतलब इधर उधर। तो उस सेंस में आई Correct. वुड से कि थोड़ा मुझे कंट्रोल करने में हेल्प हुआ था। और फिर हाँ, फिर वही मैंने आइडेंटिफाई करा था। एंड सेकेंडली मैम, इस बार मैंने थीम्स आइडेंटिफाई करे थे एसे के लिए, बेस्ड ऑन PYQ, कि फिलोसॉफिकल भी पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी थीम क्या पूछे जा रहे हैं। कि एक नॉर्मल रहता था कि साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, तो उसमें भी था तो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर था फॉर एग्जाम्पल। या फिर फॉरेस्ट वाला जो था सिविलाइजेशन में था, उसमें भी एक अंडरलाइनिंग थीम था। तो थीम आइडेंटिफाई करने में के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वही था कि यू कम अप विथ एग्जांपल्स, यू कम अप विथ यूनिक पॉइंट्स, यू रेज पॉइंट्स इन पैराग्राफ मैनर, you connect Correct. your paragraphs with one another, and then you give a suitable conclusion, और उससे पहले you give some kind of antithesis to the proposed solution or to the proposed topic। तो ये मेरा Right. मतलब अप्रोच था। थैंकफुली इस बार आई बिलीव थोड़ा बेटर साइड पे ऐसे हुआ है, जब रिलेटिव मार्किंग की बातें करूँ तो मैं, तो हाँ। मतलब वो इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू वर्क ऑन इट, यू नो देयर इज लाइक आपका एक लैकिंग है उसके साथ, एंड ऐसे यस मैम। आई I feel in general also it become a little problematic for many actually, because यस either मैम, you go for एग्जैक्टली। like keep going writing, or you cannot write. You have a habit of writing concise as per यस mains. मैम। Yes, 1 2 3 4 and optional, but यस। otherwise we go like free hand के लिखते जाओ, तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस करके एक सही अप्रोच की बहुत जरूरत है। तो यस मैम। it's good actually, analysis also, and good point to understand with the essay also. Thank you for that. हाँ हाँ। Interview कैसा रहा है, because you have appeared for 2 interviews, right? यस मैम। So how has been the both experience? What became different in both first और second attempt के बीच में क्या difference आया, और आपने कहाँ से guidance भी ली? To mention that also, right? So yeah. यस मैम। मैम, इंटरव्यू के लिए वन थिंग, आई बिलीव वन कैन ओनली प्रिपेयर फॉर 180 और 185। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द डे, इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द बोर्ड, कि कैसा मूड जा रहा है, कितना डेप्थ से पूछ रहे हैं ये। तो बेसिक हमने ये करना है कि एटलीस्ट मेरा इतना प्रिपरेशन होना चाहिए कि इवन इफ इट्स अ वर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, देन ऑल्सो वी एंड अप स्कोरिंग एटलीस्ट 180। दिस वॉज माई बेंच मार्क। जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने यही सोच के स्टार्ट करा था कि कितना भी खराब से खराब दिन रहे, एटलीस्ट आई शुड बी गेटिंग 180। नाउ, पहला चीज होता है इंटरव्यू का, टू नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ होगा कहाँ से? वो डेफ का। मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव था इन माई बोथ अटेम्प्ट।
मैंने डैफ का मतलब मेरे पास अभी भी एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे इट हैज ओनली टॉक्ड अबाउट माई डैफ, एंड डैफ वो करेक्ट। डॉक्यूमेंट है एटलीस्ट 250 पेजेस का, जहाँ पे एक एक वर्ड मैंने अच्छे से एनालिसिस करा, उस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने करा। फॉर एग्जांपल सुमित है तो उसका नाम में क्या है, उससे क्या क्या हिस्ट्री अगर कोई रहा है, अगर कोई प्रोफेशनल है या फिर कोई रिलेटेड है वो है। जैसे गुप्ता में लिखाता हूँ तो गुप्त जो एम्पायर जो था वो तक मैंने पढ़ा है। तो इन दैट सेंस कि मेरा डैफ का जो प्रिपरेशन था वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। एक एक वर्ड मैंने 11 जनवरी है तो 11 जनवरी को क्या इवेंट हुआ था, जनवरी है तो जनवरी क्यों, जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 98 है तो 98 में इंडिया में क्या इवेंट हुआ था, वर्ल्ड में क्या इवेंट्स हुए थे। सो इन दैट सेंस कि आप एक एक वर्ड्स को जब आप फॉलो करना शुरू करते हैं ना तो इट बिकम्स ऑल द मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। इसके लिए मैम मैं एक अपाला मिश्रा मैम का एक वीडियो है रिगार्डिंग इंटरव्यू, वो मैंने रेफर करा था टुवर्ड द अर्ली डेज ऑफ माय इंटरव्यू। वहीं से मुझे पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो गया था। एंड ऑब्वियसली मतलब मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं, तीन चार फ्रेंड्स हैं हु आर ऑलरेडी ऑन द सर्विस, इन द सर्विस, दे हेल्प मी कि ठीक है ये इस तरह से पर्सपेक्टिव डेवलप करो एंड देन यू वर्क ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। वो था मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड लेयर ऑफ प्रिपरेशन था रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड हाउ टू लिंक इट विद माई ओन पर्सनैलिटी। जैसे लॉ, सिंस आई हैव डन लॉ, तो अभी जैसे ट्रम्प का ही इतना सारा कुछ चल रहा था, ही इज पुलिंग आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट, ही इज पुलिंग आउट फ्रॉम दैट अग्रीमेंट, देन विच इंटरनेशनल लॉ इज गोइंग टू वायलेटेड। तो वो सेंस में मतलब आई ट्राई टू लिंक ईच एंड एवरी इवेंट विथ माई करंट अफेयर्स, मतलब विथ माई ओन बैकग्राउंड। तो जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है तो वो दो पार्ट में होता था। पहला तो यू वर्क ऑन योर डेफ इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सेकेंडली यू लिंक ऑल योर करंट अफेयर्स। अब इंटरव्यू के लिए मैंने दो दो न्यूज़पेपर रेफर करा था, मैंने दो तीन वीडियोज रेफर करा था। जैसे कट द क्लटर आता है शेखर गुप्ता सर का, वो मैंने रेफर करेक्ट। करा था। फिर जाके उस समय तो आई थिंक राज्यसभा टीवी आती थी जो अभी आई थिंक नहीं आ रही है, बट हाँ। और फिर बट ऑन उसके बाद फिर यूट्यूब यू जाके कैन फाइंड यस समथिंग। मैम, यूट्यूब में ऑलवेज मतलब देयर आर मल्टीपल वीडियोस। जैसे पलकी शर्मा मैम का है तो वो करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा हेल्प करता था कि इंडिया पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से करेक्ट। यूट्यूब में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते थे और उसको लिंक करना है अपने बैकग्राउंड से। सपोजेटली यू आर ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो आपको ज्योग्राफी से लिंक करने आना चाहिए कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस इफ ट्रम्प इज गोइंग टू एक्वायर से ग्रीनलैंड, या फिर व्हाट आर द करेक्ट। इम्प्लीकेशंस इफ से ट्रम्प इज गोइंग टू एक्वायर पैनामा कैनल। तो आप ज्योग्राफी ऑप्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पैनामा कैनल कहाँ है, कौन सा बाउंड्री है, क्या है एग्रीमेंट वो। तो उसी हिसाब से मतलब इफ यू आर ए हिस्ट्री स्टूडेंट देन यू शुड बी अवेयर रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द पैनामा कैनल। तो वो वाला करेक्ट। चीज होता है, तो वो आइडेंटिफाई करना ना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट तो उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाता है कि बी इट एनी ऑफ द क्वेश्चंस, वो यू विल एंड अप टैकलिंग दोज क्वेश्चंस। अब जैसे मतलब मेरे इंटरव्यू में इन बोथ द इंटरव्यूज आई वुड आस्क मोर देन 30 क्वेश्चंस, 35 आई बिलीव 35 क्वेश्चंस दोनों इंटरव्यू में पूछे गए थे। एंड थैंकफुली by God's grace I was able to answer approximately 32 questions in both the interviews. तो वो तभी होगा when you have that understanding, when you have that comprehensive knowledge nugget। करेक्ट। और उसके लिए थोड़ा एक्टिव होकर के ध्यान देना पड़ेगा। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो आई एंडेड अप स्कोरिंग गुड मार्क्स, इट वाज क्लोज टू 200। एंड दिस अटेम्प्ट आल्सो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बट ठीक है मतलब जितना मिला आई एम हैप्पी कि सर्विस में मिल गया है एंड इट्स आल्सो अ डिसेंट मार्क्स ओनली। तो वो तभी होगा जब आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा। मैम करेक्ट। अगेन रिगार्डिंग इंटरव्यू, आई बिलीव पर्सपेक्टिव बिल्डिंग अगेन उसमें भी एक्सरसाइज होना चाहिए जहाँ पे नेशंस इंटरेस्ट शुड बी एट द फोरफ्रंट। उसके बाद यू प्रायोरिटाइज दैट, सो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर। कोई भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा पूछा जा रहा है तो वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कैसे डेवलप करना है। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे मेंटोर्स भी मिले हैं। पहला उत्कर्ष सर, जो 2022 में मुझे मिले थे, और मैं उनका वो तभी SOMP चलता था, आई ज्वाइन दैट। और 2024 में भी आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। ही आइडेंटिफाइड माई वीकनेसेस स्ट्रेंथ एंड ही टोल्ड मी कि जैसे मेरा सैनिक स्कूल बैकग्राउंड है तो यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट फ्रंट। एंड इन बोथ माई इंटरव्यूज सैनिक स्कूल वाज बीइंग आस्क्ड। तो वो उस सेंस में उत्कर्ष सर वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। सेकेंडली सिविल्स डेली के साकेत सर हैं, ही यूज टू सिट विथ मी रेगुलरली रिगार्डिंग अगेन वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कि हाँ ये थीम आइडेंटिफिकेशन क्या करना है नहीं करना है, उस सेंस में भी ही हेल्प मी। और सजल सर भी बहुत हेल्प किए थे। नाउ रिगार्डिंग इंटरव्यू, आई बिलीव इन ओवर डूइंग इट।
मतलब मेरा ये हमेशा से था। इन बोथ माई अटेम्प्ट्स मैंने काफी ओवरडू करा है, मैंने काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज दिए हैं। ऑल्सो बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल, और मुझे लगता था कि बात ही तो जाके करनी है एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ा सा Exactly. स्टार्टिंग में यू फील नर्वस It व्हेन यू frees एंटर you. द। हाँ. It हाँ, frees you बट also. व्हेन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, मैं ना मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा मेरा इतना ज्यादा ओवरडू हो गया था इन माय मेन इंटरव्यू, आई वाज फीलिंग ऑल द मोर नॉर्मल कि यार दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल पीपल एंड आई नीड टू रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी टू देम। तो वो ओवरडूइंग में ना वो काफी मतलब ऐसा था कि मेरा पर्सनैलिटी उस वे में काफी रिफाइंड हो गया था, स्पेशली इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। Having Correct. said that, again at the cost of reiteration, I still believe कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ज्यादा मतलब ये वाले अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू में थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे। बट हाँ ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ठीक है। ठीक है, ठीक, चलिए. So we almost covered the strategy with every aspect of this journey, and अब इस journey में we know it is a long journey, right? It यस takes your मैम। years of preparation. So यस how मैम। you kept yourself like keep going also, and what motivated you to be doing what you're doing? Because हम्म। many times we also get this case that people are not able to get through those stress and uncertainties, and a lot of uncertainties is around this examination also, right? So how हम्म। you kept going, which is important to understand, like I myself also want to know that. So yeah. मैम पहले ना आई बिलीव मेंटल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव सिंस आई हैव टेकन दिस चैलेंज, नाउ आई कैन नॉट क्रिब अबाउट इट, नाउ आई कैन नॉट मतलब रिग्रेट अबाउट द सेम, और आई कैन नॉट डू कंप्लेन। मतलब एक होता है ना कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड की यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतना करना है, वो नहीं करना है, वो पहले आई बिलीव वो छोड़ना पड़ेगा। ऑल्दो ऐसी होती है, इट्स इजियर सेड देन डन। मेरे साथ भी ऐसा होता था। आई स्टिल रिमेम्बर वी यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग कन्वर्सेशन, जहाँ पे आई यूज्ड टू Correct. टेल यू कि हाँ यार एक एक घंटे की भी हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, जहाँ पे आई यूज्ड टू टेल यू एंड आई यूज्ड टू क्रिब अबाउट द सेम, यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतना करना है, वो करना है। बट हैविंग सेड दैट कि एक मेंटल क्लैरिटी और पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। इट इज अ टैक्सिंग प्रोसेस, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं होने वाला है इजी। बट अगेन यू नीड टू कीप गोइंग। और कीप गोइंग कैसे होगा? थोड़ा सेंड माइंड रह करके। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू अगेन हैविंग गॉटन वेरी गुड, मतलब पेरेंट्स का भी सपोर्ट सिस्टम था, फैमिली का भी सपोर्ट सिस्टम था, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट सिस्टम था, और जो भी मेरे जितने भी सारे मेंटर्स रहे थे, बीट मतलब हेमल मैम या फिर उत्कर्ष सर या फिर सिविल जेली के भी अरविंद सर थे, साकेत झा सर थे, सजल सर थे। अब जितने भी सारे मेंटर्स मेरे फ्रेंड्स थे, जितने भी थे, दे वर ऑलवेज मतलब सपोर्टिंग मी। और तो वो हो जाता है ना कि यू जस्ट डेवलप दैट थिंग कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही रखना है। ठीक है, अगर Correct. नहीं हुआ, जैसे 22 में मैं जॉब छोड़ करके आई अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू देन मिस्ड बाय 14 मार्क्स, तो ऑब्वियसली काफी हार्ट ब्रोकन था। उस मोमेंट में मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो लॉ फर्म की जॉब थी, एटलीस्ट सर्टेनिटी तो है कि इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी नहीं हो रहा है। और फिर उस साल ना मेरा इंटरव्यू लेट से हुआ था, और लेट के साथ साथ फिर मुझे सिर्फ 4 डेज मिले थे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आफ्टर द रिजल्ट्स। Correct. तो उस चक्कर में मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव हेड स्पेस नहीं मिलना, वो भी नहीं हुआ था। और मतलब वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। आई स्टिल बिलीव कि अगर मुझे मे बी 10-15 डेज मिला रहता तो आई वुड हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, और शायद मैं ये एक साल पहले कर रहा होता अभी जो मैं कर रहा हूँ। Correct. बट आई Yes. मिस्ड बाय 1.5 मार्क्स। एंड उस समय तो मुझे लगा कि यार 2 अटेम्प्ट, आई लॉस्ट 2 अटेम्प्ट्स विद इन अ वीक, विद इन अ स्पैन ऑफ वीक, क्योंकि मतलब वो 4 दिन के रिजल्ट के 4 दिन के Correct. बाद प्रीलिम्स था। और यू लॉस्ट 1 अटेम्प्ट, यू लॉस्ट 2 अटेम्प्ट्स, नाउ यू आर इनटू योर थर्ड अटेम्प्ट। तो सेल्फ डाउट आ रही थी, यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो बट एक Correct. क्लैरिटी था मेरे दिमाग में कि यार अब जब आना ही है, जब दे ही रहा हूँ, तो अच्छे से देना है। अब एक होता है कि यू develop just two mindset, either you just fill yourself with negative people, negative attitude, and then appear for examination, you fill yourself with positive people and then positive mindset कि हाँ जब Correct. देना ही है तो अच्छे से देना है, अब उसमें फिर रोना ही क्यों है जो मुझे। एंड ड्रिल इज ऑल द सेम कि 8 घंटे पढ़ने हैं सुबह उठ करके। दिस यूज टू बी माई रूम जहाँ पे मैं लगातार 2 साल पढ़ा हूँ। हाँ, मुझे सुबह में मतलब यही मेरा रूम था, यही मेरा टेबल है, यही मेरे बोर्ड थे जहाँ पे आई यूज टू कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ।
और उसके बाद फिर बस हाँ मतलब, और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मतलब आई नीड टू रेंट इट आउट, आई यूज टू रेंट इट आउट विद हेमल मैम, आई यूज टू रेंट इट आउट विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली, कि हाँ यार ये नहीं हो रहा है। उसके बाद वंस आई हैव रेंटेड आउट एवरीथिंग, फिर आई गेट बैक टू माई टेबल एंड देन डू स्टडी। तो जितना भी करना है, रोना भी है तो यार रो लो। मतलब मुझे याद है कि जब सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली इट कम्स अ फेज जहाँ पे आप नेचुरली यू स्टार्ट क्राइंग। एंड तो वो फेज हुआ था जहाँ पे आई वाज वेरी इमोशनल कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आई क्राइड फॉर अ वाइल एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे एक अटेम्प्ट करना है, वो अच्छे से करना है। तो देन करेक्ट। आई स्टार्टेड डूइंग इट। सेकेंडली मैम, एक और चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई यूज टू लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स, बीट एनीथिंग। मतलब वो बहुत हेल्प किया था कि मतलब वेन एवर आई यूज टू फील वेरी लो इन माई लाइफ, तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुन करके लगता था कि हाँ ठीक है, इफ पीपल हैव डन इट, इफ सो मेनी नंबर ऑफ पीपल हैव डन इट ओवर टाइम, द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, देन आई कैन ऑल्सो डू इट। मतलब मेरे में क्या कमी है? तो दैट पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। एंड लास्टली टुवर्ड द एंड, जब मुझे लगा था कि यार थोड़ा मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है या कुछ अच्छा लाइन पे नहीं चल रहा है, देन अगेन मुझे थैंकफुली उत्कर्ष सर मिले, और फिर मैं उनको पकड़ लिया था टुवर्ड्स द एंड। मुझे अभी भी याद है कि मेरे मेन इंटरव्यू से जस्ट 2 दिन पहले आई वेंट टू हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं उनसे बातें किया, 1 घंटे हमारी बातें हुई थी, जहाँ पे वी टॉक नॉट ओनली अबाउट इंटरव्यू बट ऑल्सो मतलब इन जनरल कि हाँ कैसे आउटवर्ड डिमीनर होना चाहिए। तो दैट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। तो वही हो जाता है कि वंस यू आर से इंटरव्यू में, मुझे अगर आई स्टिल बिलीव कि अगर शायद मेरी वो कन्वर्सेशन उनसे नहीं हुई होती, तो आई वुड हैव एंडेड अप गेटिंग 160 और 170 इन द इंटरव्यू। जो लिस्ट में भी नाम होना, या फिर लिस्ट में भी नाम होता, तो अगेन अच्छी सर्विस नहीं मिलने का ज्यादा चांस रहता। तो दैट कन्वर्सेशन ऑल्सो हेल्प मी। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई, एंड देन अब आपको बोलना पड़ेगा। जैसे उत्कर्ष सर वॉज नॉट अवेलेबल, उनकी तबीयत दैट्स खराब व्हाट हो आई गई वाज थी। ट्राइंग टू हाँ से हाँ, कि आपको रीच आउट करना पड़ेगा। यू कैन एग्जैक्टली। नॉट बी लाइक ए समबडी वुड रीच यू एंड हम्म। मोटिवेट यू। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल सो हाँ, दे कैन गाइड यू राइटली और दे कैन हेल्प यू और लिसन यू आल्सो। नॉट अगर एग्जैक्टली। कुछ नहीं कर सकते तो सुन तो सकते ही हैं एंड आई एम वेरी आप। परसिस्टेंट एंड स्टबर्न ऑन दिस रिगार्ड, मतलब इन दीज रिगार्ड्स, जहां में मुझे लगता था कि हाँ बातें करनी है, मुझे रेंट आउट करनी है या कुछ भी, कोई भी बातें करनी है तो मुझे करनी है। मतलब आप भी बिजी हो जाते थे, या फिर सर भी बिजी हो जाते थे, या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स भी बिजी हो जाते थे, लेकिन अनटिल अनलेस आई हैव नॉट स्पोकन माई माइंड, तब तक मैं चुप नहीं बैठता था। तो दैट सेंस में आई हैव बीन वेरी स्टबर्न। I want to tell everyone to do this because this could become a this is a very good habit to have, like to able to vent it out. Most people यस just मैम। want to deal with themselves, which then suddenly doesn't help in a long run. मतलब दो यस चार मैम। बार अपने आप को समझा लोगे, पर कितनी बार समझाओगे, वो वाली भी चीज होती एग्जैक्टली। है। पर जब कोई सामने वाला आपको वो सेम चीज बोल देता है तो इट जस्ट वो वैलिडेट हो जाता है कि हाँ चलो अब ठीक है, चलते हैं हम अपने एग्जैक्टली। काम पर। या करेक्ट। Chalo. So it overall we have understood this and all. But I really want to understand like how your parents were like support in this journey because it's a long journey as you said also they यस were मैम। been very helping and understandable also. But what different they had like been there with you, like it was no issues or no something, or how I really want to understand this. And when it come from a student, if somebody is listening, some parent is also यस listening, मैम। so यस they मैम। should be able to help their child with same attitude also, right? So it's यस मैम। necessary. Yeah. यस मैम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब, again at the cost of reiteration, I have been blessed with good set of people in my life, be it friends, mentor, parents, everybody I still believe कि I'm very blessed कि उन्होंने मुझे कभी भी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। आई स्टिल रिमेम्बर क्लैट का, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन माय क्लैट आई एंडेड अप गेटिंग एनएलयू जोधपुर, और जोधपुर में गया, वहां पे आई वाज नॉट फिटिंग इन विद द करिकुलम, वहाँ के इन्वायरमेंट, एंड देन आई थॉट अबाउट ड्रॉपिंग इट। फिर मैंने आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम एनएलयू जोधपुर, आई अगेन प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट एंड देन ज्वाइंड एनयूजेएस। तो वहां पे भी माय पेरेंट्स वर वेर लाइक कि यार तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, वट एवर यू फील लाइक, you just go for Right. it. Like even when appearing while NDA ka wala exam, they were very disheartened.
जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं जब हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दे वर वेरी ऑब्वियसली दे वर वेरी डिसहार्टेंड। बट दैट जो डिसहार्टमेंट होता है, दे डिड नॉट यूजुअली सो मी। वो क्या करते थे, वो अपने अंदर रख करके दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी कि यार तुम्हें करना है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम करो। तुमको तुम बोलोगे तो तुम मतलब गिव एज मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज यू वांट। गिव मतलब अगर तुम्हें जॉब नहीं भी करना है तो विल गिव यू सम बिजनेस टू डू और समथिंग टू डू, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में। तो इन दैट सेंस, हाँ, इन दैट सेंस मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे, काफी अंडरस्टैंडिंग। आई स्टिल हैड मतलब जब 22nd को रिजल्ट आया था, 21st को आई गॉट माई कॉल फ्रॉम माई फादर। आई वॉज इन दिल्ली तभी, अभी 21 को। और माई फादर वॉज टेलिंग मी कि यार करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तुम्हारे पास लॉ फर्म का जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, मतलब इतने लोग हैं, नहीं पढ़ हो पाएगा तो तुम पढ़ा लेना, तुमको जो अच्छा लगे। बेसिकली हिज अंडरस्टैंडिंग वाज कि वॉट एवर सूट्स मी, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे आजादी मिली। और वो अगेन मतलब आई बिलीव कि बहुत कम लोगों को मिलता है। कुछ के पेरेंट्स थोड़े रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, कुछ के पेरेंट्स थोड़ा गाइड करते रहते हैं कि नहीं ये करो। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब मेरा काफी अच्छा था इस सेंस में। सेकेंडली मैम, आई बिलीव कि इसमें ना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आई शुड बी मेकिंग सम कॉन्क्रीट डिसीजंस इन माई लाइफ। अब कॉन्क्रीट डिसीजन एंड वेरी जुडिशियस डिसीजन कि यार उनके भी एक्सपेक्टेशन को मैं हार्म नहीं करूं। दैट वाज मतलब वो जैसे राइट्स एंड ड्यूटी कोरिलेटिव होते हैं ना, उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कोरिलेटिव होते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे इतना फ्री हैंड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव सम एक्सपेक्टेशन एंड एट द सेम टाइम आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देमसेल्व्स प्राउड, टू मेक देम प्राउड। तो उस सेंस में मतलब मेरा ये क्लैरिटी था कि यार जब इतना मुझे फ्री हैंड मिल रहा है, आई एम दिस मच फॉर्चुनेट, तो आई शुड बी एबल टू गिव सम हैप्पीनेस टू देम। तो उस सेंस में ना आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विथ माय प्रिपरेशन। ऐसा भी नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैम, अगर मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे लगता कि ये एग्जाम मेरे से नहीं होने वाला है, आई वुड हैव ड्रॉप डाउन फ्रॉम दैट प्रिपरेशन, आई वुड हैव जॉइंड द लॉ फर्म, आई वुड हैव कंटिन्यूड माय फादर्स बिजनेस और वुड हैव डन समथिंग एल्स। वो वाला भी अंडरस्टैंडिंग होना, एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। That is और मेरे very दिमाग में था कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। आई एम नॉट गोइंग टू मतलब वो होता है ना कि पुल कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रैग कर good. रहे हैं कि नहीं हो रहा है। मतलब सो एक होता है ना कि मोटिवेशन एंड एक होता है कि प्रैक्टिकलिटी। तो मेरे दिमाग में प्रैक्टिकलिटीज भी था कि आई एम नॉट गोइंग टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर 6th अटेम्प्ट। कुडोज टू देम। आई मतलब दिस इज मतलब दोनों हाथों से जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ कि जो 6th अटेम्प्ट करते हैं उनका आई सैल्यूट टू देम। बट मेरे में इतना भी कैपेसिटी नहीं था कि मैं 6th अटेम्प्ट तक इसको लेके जाऊं। Because what I feel is to make if when we are talking about this, it is very important to understand, to evaluate yourself where you're standing एग्जैक्टली, and एग्जैक्टली। how much you are ready to give also with this, right? यस मैम, Because you are यस मैम, losing also something in this process. So how यस much मैम, you are ready to do that, and how much privilege you have to do that also. That is also एग्जैक्टली। necessary. So if you यस मैम, understand this, then it is fine. Matlab, if you have that privilege, if you have that opportunities also, कि you can give more attempts or something, or in with yourself also, you यस मैम, want it or not. That is also यस मैम, because it's not always you would be motivated, right? You would be not in the यस मैम, same scenario. Today you are ready to work hard, but tomorrow you may not like to work hard. So एग्जैक्टली। are you ready to do that or not? So in all that, the self evaluation is very important in this process, and everybody should do that. And यस whatever मैम, works for you, do that. मतलब do not be in like कि नहीं अभी as you said कि करना है तो अभी चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, attempt to attempt जा रहे हैं. हाँ। Self take a pause, self evaluate, and then go ahead. So हम्म। yes, totally agree एंड with that. It's यस मैम, important. वन मोर थिंग आई बिलीव, जो इंसान का जो इंट्यूशन होता है, व्हाट वी से इन हिंदी, अंतरात्मा। इफ वन आस्क दैट अंतरात्मा ना, तो उसको पता रहता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। Correct, मतलब correct. दिस वाज क्लियर कि अगर ये मेरा नहीं होता तो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। आई स्टिल बिलीव कि मैंने कभी आपको कन्वे भी करा होगा कि यार दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट अटेम्प्ट। अगर Correct, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आई एम डन, मतलब फिर मेरे से ड्रैग नहीं हो पाएगा। तो दैट वे correct. ऑल्सो आई हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई ट्राई टू मैच दैट माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट मैच कर जाए, वो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए जैसे दिस Correct. टाइम। और इवन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज फुल्ली सेटिस्फाइड कि मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है। अब सिलेक्शन होना ना होना इट्स अ डिफरेंट थिंग,
but at least you should be satisfied with yourself कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है. And with that, it is also important to be confident in your process also. Don't be like Exactly. I'm not doing enough. What you're doing, be Mm-hmm. confident with that also. It's Exactly, important. exactly, Yeah, ma'am. true. True. Okay, so last two, three questions we have like to before we wind up. First, uh, if we say you want to tell anybody thank you, dedicate or whatever, how whoever you want to, please mention those people. It would be shout out to those people. Be it any coaching, be it any your parents are there, your friends are there. Just Yes, ma'am. yeah. मैम फर्स्ट तो फैमिली पेरेंट्स तो है ही, मतलब आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. Yeah. माय फ्रेंड्स मैम, आई हैव गॉट टू वंडरफुल सिविल सर्विसेज में जो हैं ऑलरेडी फ्रेंड्स, मुकुंद एंड आदित्य. एंड देन एक निवेदिता है. आई एम ग्रेटफुल टू हर. सी हैज बीन एटलीस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, सी हैज बीन माय गाइडिंग लाइट एंड माय जो इमोशनल वेंट आउट होता था वो. एंड देन मेरा कॉलेज का रूममेट है गौरव कारवा, हु इज वर्किंग इन अ लॉ फर्म इन मुंबई. ही वाज आल्सो देयर. And so these were my friends. Now talking about mentors, ma'am, first of all, you have been my supporting pillar for a while now, because I have been associated with your institute for like good 1.5 years. Yeah. एंड स्टार्टिंग उसके बाद फिर उत्कर्ष सर हैं. और फिर टू टॉक अबाउट सिविल्स डेली के मेंटोर्स जो थे, जैसे साकेत झा सर थे, वो मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में भी हेल्प करा था, और उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू में काफी हेल्प करा था, क्योंकि वो जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता है ना इंटरव्यू के लिए, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट. एंड Correct. रिगार्डिंग दिस सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होता था. अरविंद अग्रवाल सर हैं सिविल्स डेली के. अगेन ही हैज आल्सो हेल्प मी. Regarding Correct. essay, Piyush sir has been instrumental. He has helped me in like number of things. And lastly, during my first interview process and the this second interview process, Sajal sir helped me to develop perspective. So these are the people to whom I have been associated, and these are the people to whom I have been like I would be Good. forever grateful to them. It's good actually, and it's good that you have like all the people have been ready to be there, right? So it is also good. Exactly. Okay, so now any like as we have discussed it now, I understand that you have been more into books, notes, and some videos you have. So is there Yes, ma'am. anything like any Telegram channels or some website or something which you have followed rigorously? You want to suggest people that they can go Um, for it? Something मैम आई is there. डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ, मुझे चैनल के एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, क्योंकि मुझे ना मेरा आदत रहता था कि द मोमेंट आई हैव रिटन माय मेंस, आई वुड लीव दैट दोज चैनल्स. तो वो मेरा थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है. तो आई एम वेरी सॉरी दैट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम्स ऑफ द टेलीग्राम ठीक है, चैनल, लो, बट आई टुक हेल्प ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स एज वेल. then okay. Now, as some people are going to appear for prelims, there are 23 days approximately, we can say that now. यस So, मैम. do you have any message to them? And second message to everyone who is preparing or doing यस मैम. something in life, right? They want to achieve something. So, what do you want to tell all those people? यस मैम, फर्स्ट रिगार्डिंग द प्रीलिम्स अपेयरिंग स्टूडेंट, पहले तो आपके पास पीवाईक्यूज अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए. आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम्स को लेकर के, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर्स माइंड जो होता है, वो Mm, आइडेंटिफाई होना चाहिए. दूसरा है कि लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग जो होता है, दैट वो बुक से नहीं डेवलप होने वाली है. तो उस चीज के लिए यू विल ऑलवेज हैव टू बी मेंटली अलर्ट, बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन, और उसके बाद देन वर्क फॉर इट. अल्टीमेटली इट इज दोज 2 hours विच इज गोइंग टू डिटरमाइन द नेक्स्ट 1 years, 1 year एटलीस्ट योर कोर्स ऑफ जर्नी. कि अगर वो अच्छा 2 घंटा बीता, देन यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर मेंस एंड इंटरव्यू. अगर नहीं वो 2 घंटा बीता, तो फिर जाके इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. तो उस सेंस में पॉजिटिव माइंडसेट होना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Secondly, do not get bogged down by coaching institute के marks. I still remember prelims से फर्स्ट अटेम्प्ट में, prelims से जस्ट एक महीने पहले मेरा कंसिस्टेंटली स्कोर रहा था 60 to 75. And then on my final day, I ended up getting more than 95.
ना यू सी द डिफरेंस। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझे लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, 60 से नीचे तो नहीं जा रहा है ना, 75 ही आ रहा है, 70 ही आ रहा है, 80 ही आ रहा है, एटलीस्ट 60 से नीचे तो नहीं जा रहा है, फाइनल डे मैं कर लूंगा। तो वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एंड आई बिन अगेन फॉर्चुनेट कि सी सेट मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ा, क्योंकि क्लैट की वजह से, क्योंकि क्लैट में काफी रिगरसली मैंने करा था सी सेट का, और सी सेट के लिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, तो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक अबाउट एडवाइस ऑन द सेम। एंड रिगार्डिंग इन जनरल मैम लाइफ के ऊपर, मैम आई बिलीव ना एक क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है, पहला चीज। सेकेंडली एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। थॉट्स आए, मेरे पास भी बहुत सारे थॉट्स आए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, आई कुड हैव जॉइन द जॉब, आई कुड हैव मूव्ड अब्रॉड और डू समथिंग इन माई लाइफ rather than just sitting here on my table for continuously 2 years. तो उस सेंस में वॉट एवर यू आर डूइंग, बी वेरी 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 माइंडफुल ऑफ द सेम, हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द सेम, कि जब तुमने कुछ उठा लिया है, कुछ तुम्हारे, अगर तुमने कुछ कर लिया है लाइफ में, तो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल दैट। रिजल्ट होना नहीं होना वो बात की बात है, आप कोशिश तो कीजिए। आप अपने कोशिश में ही पूरा 100% अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मुश्किल है ना। यू कैनॉट कंप्लेन अबाउट दिस एग्जामिनेशन, दिस सिस्टम, दिस रेंडमनेस, दिस अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन और एनीथिंग, अनलेस यू Anything. हैव पुट इन, अनलेस यू हैव पुट इन योर 100%। पहले Correct. आपका काम है कि आप 100% करो, उसके बाद यू जस्ट लुक एट इट। आपने अगर 100% कर लिया है, देन यू आर गुड टू गो। At least you would be satisfied deep down in your heart. You have put in, you have given all the energy for this or for anything in your life. वो एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। लेट मी सी, मतलब अभी जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, सर्विसेज मिलती हैं, एंड हाउ आई Uh, वुड बी फेयरिंग इन माय अदर हाफ ऑफ द लाइफ। अभी तो जस्ट we are स्टार्ट ही hoping किया है। all the best for that also. Okay, chalo. Then thank you very much, Sumit, थैंक यू for मैम। giving your time also, to giving very non-filter guidance also, which was very precise, which has nothing like a precise है सारा। अगर कोई सुनेगा तो उसको पता होगा हर स्टेज में वो क्या कर सकता है, रेफरेंसेस हैं वहाँ पे, क्लियर रेफरेंसेस है, राइट? So anybody, as you had done a self study, right? So whoever यस doing मैम। self study, they could take lot of pointers from there. So thank you for that, and all the best for all the future endeavors. And we are थैंक यू hoping मैम। you do wonders also. Yeah. Okay then. So थैंक यू we मैम, थैंक यू सो मच।